حیدرآباد کے علماء نے قربانی کے جانوروں کی کھال کو ضائع کرنے کی بعض علماء اور مسلم لیڈران کے مشورے پر عمل نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ چرم کی قیمت کتنی بھی کم ہو، یہ انسانی زندگی کے لیے کام آنے والی شے ہے اور بڑی تعداد میں چرم کو ضائع کرنے کا فیصلہ چرم کی دباغت اور تجارت کرنے والوں کی حالت پر اثر انداز ہوگا۔ حیدرآباد کے علاقے مشیرآباد میں واقع زمستان پورہ میں کسی زمانے میں 100 سے زائد خاندان چرم کی دباغت اور تجارت سے منسلک تھے۔ 4-5 سال پہلے چمڑے کے ایکسپورٹ میں بڑے پیمانے پر کمی کا اثر یہاں پر بھی ہوا۔ اب اس علاقے میں محض 10-12 خاندان ہی اس تجارت سے جڑے ہیں۔ چمڑے کی صنعت کی فی الحال یہ حالت ہے کہ 5 سال پہلے 100 سے 200 روپے میں بکنے والے بکرے کی کھال کی قیمت اب محض 10 سے 40 روپے ہو چکی ہے۔ چمڑے کے تاجروں کا ماننا ہے کہ چمڑے کی قیمت کے اس طرح کم ہونے میں کسی عید یا تہوار کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں تاجرین کی کوئی ملی بھگت ہے۔ تاجرین نے اس بات کو بھی غلط قرار دیا کہ عید کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی کھال کی قیمت کم کرنے کے لیے کوئی چرم مافیا سرگرم ہو جاتا ہے۔ قربانی کے ٹائم پہ چمڑے کا ریٹ کم کیا جاتا ہے تاجروں کی طرف سے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں ایک ذمہ دار کے حساب کو بتا رہا ہوں، 80% مارکیٹ گر چکا ہے، 20% پہ آ کر ٹکا ہوا ہے۔ جی ایس ٹی لاگو کیا گیا، یہ جی ایس ٹی لاگو کرنا، پھر انسینٹو کم کرنا، لیبر چارجز میں اضافہ، ٹیننگ چارجز میں اضافہ، کیمیکل میں اضافہ، یہ تمام چیزوں کا افیکٹ آ کے لوگ رائے اسکن پر ڈال چکے ہیں۔ اسی وجہ سے 100 روپے کی چیز آج 20 روپے ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بکرے کا چمڑا خریدا، فری بھی اگر لیا تو 15 روپے خرچ آتا بیچنے کے لیے، پھر اس کو 20 روپے کا ریٹ آ رہا۔ سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے قربانی کے بعد جانوروں کے چمڑے کو ضائع کرنے کے مشوروں کے خلاف جنوبی ہند کی سب سے اہم سمجھی جانے والے جامعہ نظامیہ کے دارالفتہ نے اپنا فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ چرم کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر چرم کی قیمت کو تاجرین اور چرم کے صنعتی اداروں کی سازش قرار دیتے ہوئے حال ہی میں علماء نے بھیونڈی مہاراشٹر سے یہ اپیل جاری کی کہ اس کے خلاف قربانی کے بعد چرم کو بطور احتجاج ضائع کر دیا جائے۔ چرم کی صنعت سے وابستہ اداروں کے خلاف احتجاج درج کروائے، لیکن حیدرآباد میں عمومی طور پر علماء نے اس اپیل کو واضح الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ چرم قربانی کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اداروں کو، تنظیموں کو دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کی منفعت اور کاروبار وابستہ ہے۔ نمک لگانے والوں کا ہے مسئلہ، چمڑے کی دباغت دینے والوں کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگوں کا اس موقع پر اچھا خاصا اس سے ذریعے سے تعاون ہوتا ہے، ان کا یہ تعاون بند ہو جائے گا۔ علماء کا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور رائے یہی ہے کہ آپ چرم قربانی کو اداروں اور تنظیموں کو دیں، وہ انشاءاللہ اسے ہمیشہ کی طرح قابل استعمال بنائیں گی۔ حیدرآباد کے تاجرین چرم اور علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ قربانی کے بعد جانوروں کے چرم کو فروخت نہ کرتے ہوئے اسے کوڑے دان کے حوالے یا ضائع کرنے سے نہ صرف گندگی اور حفظان صحت بلکہ ماحولیات کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد سے نیوز 18 اردو کے لیے انیس الرحمان کی رپورٹ۔ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں 20ویں صدی کی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل مسلم خواتین پر مشتمل تصویری نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ گوا مسلم ویمن فورم اور ٹمریز کے اشتراک سے منعقدہ تصویری نمائش میں تلنگانہ حکومت کے مشیر اقلیتی بہبود اے.کے. خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر سیدہ حمید سابق رکن پلاننگ کمیشن کی حکومت ہند نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہ نمائش 7 اگست تک جاری رہے گی۔ اس نمائش کا اہم مقصد اسکولی طلباء کو غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل خواتین کے جدوجہد سے متعلق واقف کروانا ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی یہ جو پاتھ بریکرز ایگزیبیشن ہے، اس میں ہم لوگ ان وومنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے بھی ہمارے کنٹری کے لیے بہت سارے کنٹریبیوشن کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے ہمارے کنٹری کے لیے اچیو، بٹ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تاکہ لوگ ان کے بارے میں جان سکے، اسی لیے ہم لوگوں نے ایگزیبیشن کیا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ 21 مسلم وومنس کے بارے میں جانیں گے، ان کے کنٹریبیوشنس، کنوکشنز کیا ہے ہمارے کنٹری کے لیے، اس بارے میں ہم لوگ اس ایگزیبیشن میں جانیں گے کہ مسلمان عورتوں کا کتنا بڑا رول تھا پوسٹ انڈیپینڈنس، یعنی 1947 کے بعد، جس طرح انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے معاشرے کو، جہاں لوگ اتنے زیادہ غمزدہ تھے، کس طرح سے انہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا اور کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان عورتوں کو پورے ہندوستان میں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کا جو کیریکٹر تھا وہ کتنا مختلف ہے اس کی بنسبت جو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان عورت تو صرف وکٹم ہے، ٹرپل طلاق کی، پولیگیمی کی، حلالہ کی، چادر کی، چار دیواری کی. یہ مسلمان عورتیں جو تھیں انہوں نے نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کے ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کی بنیاد ڈالی. ایگزیبیشن یہاں پر رکھا گیا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو فیمنسٹ میں لڑکیاں ہیں ان کے سامنے اچھے مثال پیش کیا جائے جو 20th سینچری کے دوران کافی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے کس طرح سے سماج میں اپنی جگہ بنائے ہیں، اور چاہے فریڈم اسٹرگل میں ہو یا اس کے بعد کس طرح ملک کے ترقی میں اپنا کردار نبھائے ہیں. اس میں بیسک آئیڈیا یہ کہ بچوں کو جو ہے سوشل ایشوز کے ساتھ جوڑنا اور ان کو سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا. اور کئی بچے ہمارے ہیں آج پچھلے 17-18 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں اور کافی کچھ بچے کنٹریبیوٹ کیے ہیں ان دیئر اون ویز. ایوری ایئر ہم یہ پروگرامس کرتے ہیں اور یہ ایگزیبیشن 7 تاریخ تک چلنے والی ہے اور اس میں ہر دن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اباؤٹ 500 to 600 اسکول چلڈرن آئیں گے. GHMC کمشنر دانا کشور نے کوکٹ پلی کے علاقے نظام پیٹ روڈ کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے سڑکوں پر پڑے گڑھوں کی نشاندہی کی. اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے کنارے کاروبار کرنے والوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا. واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شہر حیدرآباد میں ہو رہی بارش کے سبب کئی شاہراہوں پر گڑھے پڑے ہیں. تمام گڑھوں کو بھر دینے کا عہدیداروں کو حکم دیا. کمشنر دانا کشور نے بوسیدہ مکانات کو خالی کرنے کا مشورہ دیا ہے. నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు పడడంతో కొంత ఇబ్బందులకు పాలవుతున్నారు ప్రజలు. దానికి సంబంధించి రోడ్లు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము. రోడ్ల మీద మొన్నట మధ్యాహ్నం నుంచి మొదలుపెట్టి లెక్కలు తీసి రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ప్రధాన రోడ్లపైన ప్రముఖంగా కాలనీ రోడ్లపైన ఒక 4000 రోడ్లు గుంతలు ఏర్పడినట్టు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 900 ప్లేసెస్లో రోడ్లు అక్కడక్కడ బ్యాడ్గా డ్యామేజ్ అయినట్టు రిపోర్ట్ వచ్చిందండి. నేను నైట్ కూడా అధికారులు మా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అందరూ కూడా చేసి ఈ పాట్ హోల్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాము. ఈ పాట్ హోల్స్ ఆల్మోస్ట్ నిన్న ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 50%, లైక్ ఇక్కడ ఒక 374 పాట్ హోల్స్ ఈ కోకట్టపల్లి జోన్లో అయినట్టు ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 180 వరకు రాత్రి ఇప్పటివరకు ఫిల్ చేస్తాం. तेलंगाना राष्ट्र समिति ने ऐलान किया है कि MLA कोटे के तहत कानून साज काउंसिल की वाहिद मखलूआ नशिस्त के लिए साबिक MP जी सिकंदर रेड्डी पार्टी के उम्मीदवार होंगे. TRS के सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सिकंदर रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब किया है. यादव रेड्डी को नाअहल करार दिए जाने की वजह से ये नशिस्त खाली हुई है. असेंबली इंतखाबात से कबल यादव रेड्डी के TRS छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर उन्हें नाअहल करार दिया गया था. इस नशिस्त के लिए इलेक्शन का एलामिया 7 अगस्त को जारी किया जाएगा. नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त होगी. अगर इलेक्शन ज़रूरी हुआ तो 26 अगस्त को इलेक्शन कराया जाएगा और उसी दिन नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा. NMC बिल के खिलाफ तेलंगाना के डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है. उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने NMC बिल के खिलाफ एहतजाज किया. मरकजी हुकूमत के फैसले को वापस लेने की मांग की. हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया. हर खातून को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पैदा होने के 6 माह तक अपना दूध पिलाएं. ये कहना है बच्चों के माहिर अमराज का. ब्रेस्ट फीडिंग से मुताल्लिक खवातीन में शऊर बेदार करने के लिए हैदराबाद के निकलेस रोड पर रैली मुनक्किद की गई. इस मौके पर 5K और 10K रन का अहतमाम किया गया, जिसमें मर्द खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी. बच्चों के माहिर अमराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों को उम्र भर सेहतमंद रहने के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर्स का कहना है कि डिलीवरी के चंद दिनों तक खवातीन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 1 घंटे में 1 मरतबा ज़रूर दूध पिलाएं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे और माँ की सेहत बेहतर रहेगी. It's all about awareness, public awareness for the breastfeeding mothers.
The theme of this week, world across, is empower parents and encourage breastfeeding. So we are basically here to empower parents, empower mothers, so that breastfeeding can be done everywhere, anywhere. You should not hesitate, whether you are sitting in a mall, in a workplace, or in a hospital, wherever you are, don't hesitate to breastfeed. Breastfeeding not only about the term babies, especially when it comes to the preterm babies, breastfeeding is very, very important. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी माजूर कर देती है। कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज का मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने वालों की जिंदगी पर माहिर अमराज डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी ने किताब तहरीर की है। इस किताब में उन्होंने कैंसर से मुतासरा लोगों को किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, इन हालात में उन्हें किस तरह जिंदगी गुजारना है, इस पर रोशनी डाली गई। किताब के रस्म इजरा के मौके पर अदाकारा राकुल प्रीत सिंह, अपोलो अस्पताल की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी, साबिक क्रिकेटर वेंकट पतिराजू और दीगर भी मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान राकुल प्रीत सिंह ने कहा कि हम हर मौजू पर फिल्म बनाते हैं, मगर हकीकी हीरो वही हैं जो कैंसर का मुकाबला करते हुए कामयाब होते हैं। All I'd like to say is that I think all of you are real heroes and not us. We just act that we are really strong and we portray different characters, but all of you are real heroes, real survivors, and please give yourself a big round of applause because you're inspirations to so many more who are battling this deadly disease. Cancer is curable, that our treatment options are many, and most importantly, the battle is fought by the doctors, by the technology, but more significantly by the patient and the patient family. And therefore, giving families the strength by sharing stories of survivors, I think is one of the most wonderful things. And then, after his successful launch in English, going one step further to translate that into Telugu is indeed a good step, Dr. Vijayanand. So first, let's all give him a very big hand. जिला जगतियाल के मेड़पल्ली में 10वीं जमात के बैच के एक दोस्त के वालिदैन को साथी दोस्तों ने माली मदद की। साथ मिलकर तालीम हासिल करने, खेलकूद और त्योहारों के मौके पर एक साथ रहने वाला साजिद चंद दिन कबल रोजगार की खातिर दुबई गया हुआ था, जहां पर काम के दौरान उसकी मौत हो गई। घर में कमाई का यही एक वाहिद शख्स था। दीगर साथियों ने साजिद के घर पहुंचकर उनकी मां को पुरसा दिया और माली इमदाद भी फराहम की। साजिद के तमाम दोस्तों ने कहा कि वो हमेशा हर हाल में साजिद के घर वालों की मदद के लिए तैयार हैं। दोस्तों की हमदर्दी को देखकर एक मां की आंखों से आंसू जारी हो गए। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। एपी के राजमंड्री के करीब दरिया गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में दरिया की सतह बतदरीज बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र धोलेश्वरम कॉटन बैरेज के करीब पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए ओहदेदारों ने खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया है। धोलेश्वरम लबरेज हो गया है। हुकूमत ने हुक्काम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। भद्राचलम में भी गोदावरी नदी खतरे के निशान को छू रही है। देवी पट्टनम मंडल ज़ेर आब आ गया है। 50 से ज़ायद गांव ज़ेर आब आ गए हैं। 4000 ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। एपी के वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इमदादी कामों से मीडिया को वाकिफ कराया। 31వ తారీఖు నుండి గోదావరి నది బేసిన్లోకి వస్తున్న వరద ముంపు కారణంగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో 24 మండలాల్లో 280 గ్రామాలు ముంపుకు గురి కావడం జరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 13,43,836 క్యూసెక్ల వాటర్ వస్తే అదే స్థాయిలో ఆ నీటిని బయటకు వదలడం జరుగుతోంది. మనకు ఈరోజు 12 గంటలకు రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జెండా ఎగురవేయడం కూడా జరిగింది. తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలోని యంత్రాంగం అంతా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. దీనికి ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ మరియు ఫైర్ సర్వీస్ అధికారులు ముంపు ప్రాంతాలలో ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంతే जम्मू कश्मीर हुकूमत की एडवाइजरी के बाद तेलुगु रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के तलबा का एक काफिला आज श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा। श्रीनगर
NIT में ज़ेर तालीम तलबा की दहली आमद पर AP भवन के हुक्काम ने तलबा के ताम का इंतज़ाम किया। जम्मू से मज़ीद तलबा आज जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अंडमान एक्सप्रेस की 2 खुसूसी बोगियों के ज़रिए तलबा को लाया गया। श्रीनगर से जम्मू तक बसों के ज़रिए तलबा को लाया गया। तलबा का कहना है कि तालीमी इदारों से उन्हें रवाना किया जा रहा है। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आवाम की सिक्योरिटी के लिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35A को हटाना बीजेपी के एजेंडे में शामिल है और बीजेपी मुल्क को मुत्तहिद रखने के अहद पर अमल पैरा है। Whatever is happening in Jammu Kashmir is known through media. What steps Honorable Home Minister and central government they are taking. The steps are taken for the safety of Jammu Kashmir people, Amarnath Yatris, and those people, those who have gone from outside, maybe for study purpose or maybe for tourism purpose or maybe for business purpose. Definitely we are committed for removing Article 370 from Jammu Kashmir, and we believe that Jammu Kashmir is India. Jammu Kashmir is Bharat. Article 35A is there and many other things, technicalities are there. So Lok Sabha, Rajya Sabha, we are taking care of the procedure with proper procedure. We will remove that article, we are sure, because it is the agenda of our party since inception. एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे and he entered Kashmir, sacrificed his life. And that is why Bharatiya Janata Party is committed to keep this country one and make this country first in the world. करनूल में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने बताया कि बीजेपी की जानिब से AP में रुकन साजी मुहिम प्रोग्राम जोरों शोर से चल रहा है। दीगर पार्टियों के कई लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी रियासत आंध्र प्रदेश में हुकूमत बनाएगी। प्रदेश में हम 25 लाख लोगों को नए मेंबर बनाना चाहते हैं, पुराने और नए मिलकर। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर से उनका विश्वास हट गया है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जनसेना में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली का गश्ती कुतुबखाना आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। गश्ती कुतुबखाना करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में उर्दू किताबों की नुमाइश और फ़रोख्त का अहतमाम किया। KVR शोबे उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और दीगर तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने किताबें ख़रीदी। असातिज़ा ने किताबों की ख़रीदारी में तलबा की रहनुमाई की। करनूल के अहले उर्दू असातिज़ा और तलबा ने कौमी काउंसिल के गश्ती कुतुबखाने की आमद पर मसरत का इजहार किया और रियायती कीमत पर उर्दू किताबों की फराहमी पर कौमी काउंसिल के ज़िम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का ये मोबाइल वैन केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश होते हुए आज करनूल आई है। आंध्र प्रदेश में रायचुट्टी, कड़पा, हिंदूपुर और बहुत छोटे छोटे शहर में होते हुए जो है आज करनूल पहुंचा है। कल इंशाल्लाह हैदराबाद जाएगा, जिसमें ये उर्दू की किताबें लोगों को शिकायत होती है कि नहीं मिलती छोटी छोटी जगहों में, इसलिए छोटे से छोटी जगह में भी पहुंचकर लोगों को जो फायदा उठाना चाहिए उसके लिए ये काम कर रहा है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान मुल्क के कोने कोने में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है। ये काम काबिल सताइश है और हमारे पास आज यहाँ पर मोबाइल लाइब्रेरी भी आई हुई है, जिसमें कई तरह की उर्दू की किताबें हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन किताबों को देखने से हमें थोड़ा ये हो रहा है कि अगर इसमें लेटेस्ट वर्जन भी रहे तो इससे तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए कारआमद साबित होगा। हम अपने तालिबात के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है करनूल वालों के लिए कि ये दिल्ली वालों ने फरोग़ उर्दू ज़बान काउंसिल ने यहाँ तक हमको किताबें दस्तयाब करने के लिए ये इंतजाम किया। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बाइस फख्र भी है और जो है हमारे लिए फायदेमंद भी है। बहुत नादिर व नायाब किताबें, मशहूर और मारूफ मुसन्निफों की किताबें हैं। जदीद और ख़दीम दोनों तरह की किताबें दस्तयाब है। तिब से मुताल्लिक़
तारीख से मुतालिक, समाजियात से मुतालिक, दिगर घरेलू टोटके वगैरह के मुतालिक तमाम किताबें दस्तयाब है। यहाँ पे हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, यानी कि सियासियात से मुताल्लिक, तारीख से मुताल्लिक और उर्दू से तो बहुत है, उर्दू अदब के मुताल्लिक से। भारत का सबसे आला निशान है उर्दू, इस देश में सदियों से जवान है उर्दू, शुमाल से जुनूब तलक है इसकी ज़िया, अंधे हैं जो कहते हैं कहाँ है उर्दू। डिप्टी डायरेक्टर INPR करनूल की हैसियत से तमापा ने आज जायज़ा हासिल कर लिया। वो करनूल DPRO की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे। नए ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया। CPM की जानिब से ज़िला करनूल के कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मोटर गाड़ियों के कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से नए कानून में तब्दीली करने की मांग की। उन्होंने नए कानून में भारी जुर्मानों पर एतराज़ किया। करनूल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से NMC बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने NMC बिल के खिलाफ एहतजाज किया। करनूल में बाइक रैली निकाली। उन्होंने बिल को मनसूख करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के गोपाल मित्रा कारकुनों ने AP का हुकूमत से उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत देने की मांग की। एहतजाजों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। अपनी मांग को लेकर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का हुकूमत को इंतबाह भी दिया। सदर मकाम के तौर पर तरक्की करने वाले शहर विजयवाड़ा को प्लास्टिक फ्री बनाने के ओहदेदार दौड़ धूप में लगे हुए हैं। इसी मकसद को लेकर हमारा विजयवाड़ा के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती चीफ सेक्रेटरी SV सुब्रमण्यम के अलावा कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज, म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकटेश, सिविल सप्लाई कमिश्नर शशिधर व दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। इस दौरान खवातीन में जूट के बैग्स तकसीम किए गए। मुल्क भर में स्पीकर का ओहदा किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं है। कानून साज असेंबली एक आईने की तरह है जो समाज की अक्कासी करता है। विजयवाड़ा में मीट द प्रेस के मौके पर स्पीकर T सीताराम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्पीकर के ओहदे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। 3 तेलुगु देशम MPs को BJP में शामिल करने के तरीक़ेकार पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने तेलुगु देशम MPs को BJP में शामिल करने के दौरान गैर अखलाकी सरगर्मियों को अंजाम दिया है। जिला कृष्णा के नंदीगाम में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा जा रही RTC बस के ड्राइवर ने मुखालिफ सिमत से आने वाली 2 व्हीलर को बचाने की खातिर अचानक ब्रेक लगाया, जिसके सबब बस के बिल्कुल पीछे चल रही ट्रक बस से टकरा गई। ट्रक के पीछे एक और ट्रक थी, वो सामने वाली ट्रक से टकरा गई। दूसरी ट्रक के पीछे एक 4 व्हीलर कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक